یا صاحب العصر والزمان بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ادرکنا فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما صلوات پڑھیں محمد والہ نعرہ تکبیر نعرہ ثواب اپنی جگہ پہ لیکن صرف میں ابتدا میں اس لیے لگاتا ہوں کہ ذرا آپ کی سستی اور یہ سردی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اس لیے چونکہ نعرہ حیدری بہت بلند ہے اور اگر رسالت کہا جائے وہ اس سے بھی بلند اور تکبیر کہا جائے وہ سب سے بلند اس لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات اللہم صلی علی محمد ہر روز آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 65 خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک اے حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ترجمہ ہر روز اس لیے لازم ہوتا ہے کہ کوئی میرا بھائی ممکن ہے آج پہلے دن آیا ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ لازم کرنا چاہیے فلا وربک ہم میں کمی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہے کہ نہیں کمی اور افسوس اس بات کا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ترجمہ تو دور کی بات ہے نا خدا مولا ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے کی اور اس سے بڑھ کے افسوس اس بات کا ہے کہ جو پڑھتے ہیں نا وہ سمجھتے ہی نہیں حفظ کرنا بہت ثواب رکھتا ہے اس میں شک نہیں ہے قرآن پاک حفظ کرنا ثواب کا اندازہ ہی نہیں لیکن ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں حفظ ہو لیکن سمجھے نہیں بھائی قرآن میں کہاں آیا ہے کہ تم حفظ کرو لازم ہے تم پہ قرآن کو یاد کرو زبانی یاد کرو حفظ کرو لازم نہیں ہے نا کہ لازم ہے لیکن سمجھنا لازم اور کہا قرآن پاک میں بارہا آیا افلا تتدبرون افلا تاکلون بار بار آیا کہ بھئی تم غور فکر نہیں کرتے تم تدبر نہیں کرتے تم عقل استعمال نہیں کرتے اور اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون ایک دفعہ کہا یہ اندھے گونگے بہرے ہیں اور کبھی نہیں پلٹیں گے اور دوسری مرتبہ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون
یہ اندھے گونگے بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. اندھا گونگا بہرا وہ ہے جو عقل نہ رکھتا ہو، اور جو عقل رکھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہے. اور جو قرآن کو سمجھ جائے اسے پتہ ہوتا ہے وارث قرآن کون ہے. جو سمجھ جائے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وارث قرآن کون ہے. پیغمبر نے فرما دیا تھا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. منبر پہ کھڑا ہوں، کسی سے دشمنی نہیں، اپنے دل کی بات کر رہا. متفقہ حدیث ہے، اس حدیث کو کسی کو اس پہ شک بھی نہیں. صحیح مسلم سمیت کئی کتابوں میں درج ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 ثقلین، 2 بھاری چیزیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وال محمد کی طرف. یہ ثقلین سے بات ذہن میں آ گئی. یہ لفظ ثقلین 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے احادیث میں. پیغمبر عالم نے لفظ ثقلین کو 2 جگہ پہ استعمال کیا ہے. واللہ دونوں ذہن میں نہیں تھی، ابھی آئی ہیں. اللہ ارشاد محمد ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے کہنے پر، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو محمد کہتا ہے وہ اللہ کہلواتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ من گلت پراپوگنڈا ہے لوگوں کا. شیعہ حدیث کو نہیں مانتے، غلط. جیسے شیعہ حدیث کو مانتا ہے ویسے مانتے کوئی نہیں. اور میں اہل تشیع کی طرف سے عقیدہ حدیث بیان کر رہا ہوں. جس طرح قرآن کے ایک حرف کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کے بھی ایک حرف کا منکر کافر. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو پیغمبر کی حدیث اور ہم نہ مانے. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ سیاستہ کی کتابوں میں درج ہے کہ پیغمبر اقدس نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. انی تحقیق میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں فیکم تم میں ثقلین 2 بھاری چیزیں. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں تمہارے درمیان 2 ثقلین کا اس جگہ پہ مانا ہوا ہے 2 بھاری چیزیں. بھائی کون کون سی؟ پیغمبر نہ بتاتے میں آگے نہ پڑھتا. پیغمبر نے اسی وقت بلا فاصلہ فرمایا ایک میری اہل بیت ہے. بھائی 2 جو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں ایک میری اہل بیت، ایک میری کتاب ہیں. 2 ایک نہیں، کتنی ہیں؟ اگر 2 کو چھوڑ کے کسی نے ایک کو پکڑ لیا. اور جو لفظ استعمال کیا، میں نے کہا کہ پیغمبر نے ثقلین 2 جگہ پہ استعمال کیا ہے. دوسری جگہ بھی بتاؤں گا کہاں پہ. پہلی جگہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. سنا ہوا نا آپ نے پل صراط، بال سے باریک، تلوار سے تیز. بھائی کسی کو سمجھ نہیں آئے یہ فرمایا کیوں تھا رسول اللہ نے؟ اتنا باریک پل ہو اور ایک ہاتھ میں وزن ہو. ہائے ہائے ہائے. بھائی اتنا باریک پل ہو اور وزن ایک ہاتھ میں ہو تو بیلنس برقرار رہے گا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ وزن ایک سائڈ پہ ہے. پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا وزن برابر رہے. دو
सारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं ताकि तुम जहां भी जाओ अगर ये समझ में ना आए, भाई अगर कुरान समझ में नहीं आता तो कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? अरे मुल्ला तू बताएगा, तुझे तो आज तक हुरूफ मुकत्तियात का पता ही नहीं चला कि अलिफ लाम मीम से मुराद क्या है, यासीन से मुराद क्या है। तुम्हें पता चला? जब से कुरान आया है, जब से तफसीरें लिखी गई, कोई मुफस्सिर लिख ही नहीं सका। जब लिख नहीं सका तो आज तक किसी ने बताया तो नहीं, और जुमला ध्यान में आ गया। अगर कोई बताए नहीं और कयामत आ जाए तो यह फेल लगव हो जाता है, फेल बेहुदा हो जाता है। और खुदा और रसूल कभी भी लगवो बेहुदा फेल अंजाम नहीं देते। ऐसा हो नहीं सकता कि अलिफ लाम मीम यासीन काफ हा या ऐन स्वाद इनके माने पता न चले। भाई आज तक तो पता नहीं चले तो लाजम पता चलना चाहिए। इस बात से पता चलता है कोई आने वाला है जो आके बताएगा। अल अजल अल अजल। कोई आने वाला है। एक और बात करता चलो मौला पे। मौला हम सबको सही मानों में अपना सिपाही बना। तौफीक वो देता है, हम कुछ नहीं। आज बातें बहुत ज़हन में आ रही हैं। लोग कहते हैं जी नेकी भी उसकी तरफ से, बदी भी उसकी तरफ से। अगर उसकी तरफ से बदी भी है तो गुनाह तेरे जिम्मे में क्यों? भाई पर मुख्तार कैसे बना इंसान? अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, जो वो चाहे करे। एक तरफ बुराई है, एक तरफ नेकी है, जिधर मर्जी जाए अल्लाह नहीं मोड़ता। हां नेकी की तौफीक अल्लाह देता है, लेकिन बुराई इंसान खुद करता है। आदम से लेकर अब तक एक और दलील करता चलो। अकली बात देखें, अकल अगर कोई बंदा इस्तेमाल ना करे तो खुदा ही समझ में नहीं आता। यानी खुदा का होना, खुदा है कि नहीं किसने बताया? पैगंबर ने। पैगंबर सच्चा है यह किसने बताया? तेरी अकल ने। अगर अकल ना हो तो कोई किसी मसले का हल तलाश कर ही नहीं सकता। अकली बात कर रहा हूं, और बार बार कुरान में भी इरशाद हुआ कि अकल इस्तेमाल करो, अकल से देखो। और पिछले खुतबा हज जो मैंने खुद सुना था, इमाम काबा वो देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने फरमाया था कि इस्लाम ऐने अक्ल है। यहां के मौलवी जो वो नहीं जानते कि इस्लाम ऐने अक्ल है, और मैं कहता हूं कुरान बताता है कि इस्लाम ऐने अक्ल है। चोरी इस्लाम में मना है, अक्ल भी कहती है मना है। किसी की चुगली करना इस्लाम में मना है, अक्ल भी कहती है ना करो। किसी को कत्ल करना इस्लाम में मना है, अक्ल भी कहती है कत्ल ना कर। वालिदैन का एहतराम करना अक्ल ने कहा लाजिम है, इस्लाम ने भी कहा लाजिम है। भाई अक्ल ने क्यों कहा? तवज्जो, जुमले से जुमला निकल रहा है, तवज्जो कीजिएगा। भाई अक्ल ने क्यों कहा? चलो इस्लाम ने कह दिया। एक पाक पैगंबर हमारा एक दीन लेके आए, हम सारा दीन समझ नहीं सकते, आपने फरमा दिया कि वालिदैन का एहतराम करो, ठीक है। अकल ने क्यों कहा? भाई अकल ने इसलिए कहा, अकल कहती है तुझे उन्होंने पैदा किया है, चूंकि तेरे लिए उन्होंने परेशानियां उठाई, तेरे मां बाप ने तुझे पाला, तेरी परवरिश की। अकल कहती है लाजिम है तुम पे कि तू अपने वालिदैन का एहतराम करे। अरे जो दुनियावी तौर पर किसी बच्चे को पाल के बड़ा करे तो अकल कहती है उसका एहसान दो। अरे जस हुसैन ने जीना सिखा दिया।
अस्तगफिरुल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। अकल की बात कर रहा हूं। आदम से लेकर अब तक, पहले नबी आदम हमारे बाप, दुनिया नहीं थी उस वक्त, सबसे पहले आदम, उसके बाद उनकी नस्ल चली। पहले साहिब शरीयत नबी हैं हजरत नूह। हजरत नूह ऐसा नबी है जिसने सबसे लंबी उम्र पाई। 2500 साल उम्र है हजरत नूह की। 950 साल तबलीग है हजरत नूह की। तवज्जो, जहां तक आवाज जा रही है पूरी जिम्मेदारी के साथ, 950 साल तबलीग हजरत नूह की। नूह नबी भी थे, साहिब कलमा भी थे, साहिब शरीयत भी थे, पैगंबर के खुदा के उलुल अज़म रसूल भी थे, कामिल अकल भी रखते थे। लेकिन 950 साल तबलीग करने के बाद अपनी तरफ कितने बंदों को लाए? सिर्फ 70 अफराद को। परेशान नहीं होना, मैं इसलिए ये बात की है कि बताना यह चाहता हूं, हक हमेशा कम होता है। और कुरान का इरशाद है सूरह बकरा आयत नंबर 87 फ़क़लीलन मा युमिनून। अल्लाह फरमाता और मोमिन कम है। वो मोमिन जिससे अल्लाह खिताब कर रहा है ना, फ़क़लीलन, बस कम होते हैं। मा कौन? युमिनून, जो ईमान लेके आते हैं। ईमान लाने वाले कम होते हैं। नूह पहले साहिब शरीयत नबी। क्या नूह ने सारी दुनिया पे हुकूमत की? क्यों जी? नहीं की ना भाई। हुकूमत तब करते जब सारी दुनिया उनकी बैत करती। जो उस वक्त लोग थे सारे उनको नबी मानते, उनकी बात सुनते। पहले नबी भी हुकूमत ना कर सके, ना इब्राहिम, ना मूसा, ना ईसा, कोई भी नहीं। और सबसे बड़े नबी जो हैं, जो सबसे अफजल हैं, अफजलुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, खत्मुर रुsul है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अफजल होने के बावजूद सारी कायनात पे जाहिरी तौर पे हुकूमत वो भी नहीं कर सके। क्यों? जब वो दुनिया से गए ज्यादा लोग फिर भी काफिर थे, सारे मुसलमान नहीं हुए थे। तवज्जो, अकली बात क्या करना चाहता हूं, बात लंबी हो गई, तवज्जो कीजिएगा भाई। क्या तवज्जो, क्या खुदा ये चाहता था कि मैं ऐसी दुनिया बनाऊं कि हमेशा हक ज़िबा होता रहे? नहीं, खुदा ने चाहता था। खुदा ने सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया। ये हमारी अपनी कमियां थी, ये हमारी इंसानों की अपनी कमजोरियां थी कि सारी जिंदगी ऐसे होता रहा। लेकिन अगर ऐसा ही हो, अल्लाह का कोई बंदा दुनिया पे हुकूमत ही ना कर सके और कयामत आ जाए, तो दुनिया का मकसद फौत हो जाता है। क्योंकि उसने बनाई है दुनिया इंसान को कमाल तक पहुंचाने के लिए। और अगर कोई पूरी दुनिया पे हुकूमत ही ना कर सके, तो अकल कहती है कोई आने वाला है जो आके सारी कायनात पे हुकूमत करेगा। और हमारे भाइयों किताबों में मौजूद है, पैगंबर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैनी किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती। एक कुरान है जो मेरी किताब है, एक मेरी अहले बैत है। सकलैन का यहां पे तर्जुमा हुआ दो भारी चीजें। ये लफ्ज सकलैन किसी और जगह पे भी इस्तेमाल हुआ है। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पैगंबर ने कहा कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। मैं जुमला अर्ज कर चुका हूं, जब पैगंबर ने कहा भाई तुम में से कौन है, अम्र इब्न अब्द वुद, खंदक फलांग किया गया, नबी के खेमे पे हमला किया। उसने कहा हल में मुबारक भेज को मेरे मुकाबले में। पैगंबर ने जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा ना पहले किसी को कुत्ता कहा, ना बाद में किसी को कहा, पहली और आखिरी मर्तबा फरमाया कौन है तुम में से जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। अली उठे, गए, जाके उसको कत्ल किया। जब उसको वार किया, पूरी तवज्जो, सकलैन का इस्तेमाल हुआ है। मैं
हूं दुनिया वालों को जिन्होंने तवज्जो ही नहीं की कि अली की फजीलत क्या है, अली की अजमत क्या है, अली की शान क्या है। रसूल ने और खुदा ने अपने अली को क्या शान दी है। जब अली ने अम्र अपने अब्दवद को एक वार के साथ वासिल जहन्नम किया, अभी वासिल जहन्नम हुआ ही था या वही आई और पैगंबर ने फरमाया ज़रबतो अलीयन अफज़लो मिन इबादत सकलैन। अभी सकलैन बता रहा हूं क्या है। मैंने अर्ज किया कि सकलैन दो मकाम पे इस्तेमाल हुआ। एक जब पैगंबर ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, यहां पे माना दो भारी चीजें, लेकिन अब जो फरमाया यहां पर सकलैन का यह माना हो ही नहीं सकता। ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। कोई सिर्फ ये हदीस ही समझ जाए तो ईमान से कोई और चीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैगंबर ने फरमाया ज़रबतो अलीयन, आज जो अली ने ज़रबत लगाई, भाई क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि अगर अली ना लगाता तो कोई और तो उठ ही नहीं रहा था। इसलिए फरमाया ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक, खंदक के दिन जो अली ने ज़रबत लगाई है, अफज़लो मिन इबादत सकलैन, ये सकलैन की इबादत से अफजल है। यहां पर सकलैन से बताऊं क्या मुराद है? सकलैन से यहां पे मुराद है दोनों जहान। दोनों जहान, भाई दोनों जहान जानते हो, दोनों जहान वो ही है जिसका वो खालिक है। दोनों जहान वो ही है जिनके लिए मोहम्मद रहमत है। पैगंबर ने एक जुमले में बता दिया कि अली की फजीलत क्या है, अली की शान क्या है। पैगंबर ने फरमाया ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़लो मिन इबादत सकलैन, कि अली की एक ज़रबत जो आज खंदक के दिन अली ने लगाई है, यह सकलैन की इबादत से अफजल है। सकलैन से मुराद दोनों जहान है। एक ये जहान है, जब तवज्जो कीजिएगा, एक ये जहान है, एक वो जहान है, एक ये जहान है, एक वो जहान है। इस जहान में सारे इंसान इबादत करने वाले, सारे इंसान मदा इबादत करने वाले, उस जहान में मलाइका इबादत करने वाले, अंबिया इबादत करने वाले, आइमा इबादत करने वाले, औसिया इबादत करने वाले, शुहदा इबादत करने वाले, सालिहीन इबादत करने वाले, सिद्दीकीन इबादत करने वाले। और मैं कहता हूं जिस अली की एक ज़रबत पूरी दोनों जहानों की, नबिया समेत, शुहदा समेत, इंसानात समेत सबकी इबादतों से एक ज़रबत अफजल हो जाए, उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। सबकी इबादत शामिल की जाए। पैगंबर ने फरमाया अली की एक ज़रबत अफजल है। अब जब कोई अली की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकता, वो अली का मुकाबला क्या करेगा? आयत के तर्जमे से शुरू हुआ था, तर्जमा मुकम्मल हो ही नहीं सका। 5वां पारा सूरह निसा आयत नंबर 65 जो आयत हर रोज पढ़ता हूं, फिर तर्जुमा करो फला व रब्बिका, हबीब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये मोमिन नहीं हो सकते। हत्ता, कब मोमिन होंगे? हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम, जब ये अपने मसाइल का हल तुझसे लेंगे, ये तब मोमिन होंगे। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, और फिर जो तू फैसला दे दे उसमें कोई हरज महसूस न करें। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और उसे ऐसे माने जैसे मानने का हक है। ईमान से कोई बंदा सिर्फ यही आयत समझ जाए, कुरान नहीं, सिर्फ ये आयत समझ जाए तो पता चल जाएगा कि नबी किसके बारे में बताता रहा, नबी किसको दिखाता रहा। नबी ने जिसके बारे में बताया, नबी ने जिसको दिखाया, अगर मुसलमान मान जाते तो आज सारी दुनिया मुसलमान होती।
इस्लाम की पहली दावत, इसका नाम है दावत जुल अशीरा। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है। मैं हर रोज कहा करता हूं, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बातें अर्ज कर रहा हूं। वअनज़रा अशीरतकल अक़रबीन, कुरान की आयत आई, हबीब इनको बुला और बुला के बता कि तू कौन है, और बता, सबसे पहले बता मैं कौन हूं। पैगंबर ने बुलाया, मुख्तसर कर रहा हूं, बुलाया, दावत किसने पकाई? अली के बाप ने। शर्म नहीं आती अली के बाप को काफिर कहते हुए? इस्लाम की पहली दावत मैं कहा करता हूं, इस्लामी से नहीं, दावत से प्यार है। देख लो, चलो बात आपने याद करवा दी तो मैं अर्ज करता चलूं, और जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। दुनिया का कोई मुल्ला जो पड़ा हुआ है वो ये नहीं कह सकता कि सहाबा अहले बैत से अफजल हैं। को कह सकता है? नहीं। सहाबा अहले बैत वो हैं जिनकी तहारत की गवाही कुरान देता है। अहले बैत वो हैं जिन पे दुरूद अल्लाह पढ़ता है। और बुखारी शरीफ में भी दुरूद लिखा है। जो बुखारी को ज्यादा मानते हैं ना, जाओ जाके जो बुखारी शरीफ में दुरूद लिखा है वो बता रहा हूं। पैगंबर से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पे किस तरह दुरूद भेजे? तो पैगंबर ने फरमाया, सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर असहाब का नाम हो तो मैं मुजरिम, मैं असहाब का दुश्मन नहीं, मैं असहाब का जितना एहतराम है उतना ही करता हूं। लेकिन अगर नबी ने, अगर मुस्तफा ने असहाब पे दुरूद नहीं पढ़ा तो तू क्यों पढ़ता है? अहले बैत वो हैं जिन पे दुरूद है। अहले बैत वो है जिनकी तहारत की गवाही कुरान देता है। यह तय हो गया कि अहले बैत सहाबा से अफजल हैं। दावत इस्लामी की बात कर रहा हूं। तय हो गया कि अहले बैत सहाबा से। मैं दावत इस्लामी वालों से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, मदनी चैनल पे आजकल एक टाइटल लगा हुआ है एक साइड पे, और लिखा है फैजान सहाबा व अहले बैत। फैज अहले बैत के पास ज्यादा या सहाबा के पास? भाई किसके पास ज्यादा? अहले बैत के पास। तो फिर मेरी गुजारिश है कि अहले बैत का नाम पहले लाओ और सहाबा का नाम जो चाहे वही रखो। किसने सहाबा का इनकार किया? लेकिन सहाबा मोहम्मद के दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते, अंदर अहले बैत ही हैं। और जब यह कहा जाता है, अहले बैत की बात आ गई, जब यह कहा जाता है कि उम्मुल मोमिनीन जितनी भी थी हमारे सर आंखों पे, वो हमारी माएं हैं, वो हमारी नबी की ज़ौजाएं थी, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन यह तय है, ये नबी ने और खुदा ने फरमा दिया कि वो जो भी थी, जैसी भी थी, लेकिन अहले बैत में शामिल नहीं थी। इसीलिए कल मैंने अर्ज भी किया था कि अहले बैत का तारुफ अल्लाह ने करवाया, हम फातिमा तो व अबूहा। और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो किताब का नाम है सही मुस्लिम, उसमें ना हो मैं जिम्मेदार हूं। सही मुस्लिम में दर्ज है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि पैगंबर खुदा से पूछा अहले बैत कौन सी है? तो पैगंबर ने फरमाया, या मैं हूं, या फातिमा है, या अली है, या हसन है, या हुसैन है। बीवियां कभी भी खानदान नहीं हुआ करती। बीवी सिर्फ बीवी बनने के बाद, अगर पहले ही अपने खानदान से, वो बात अलग है। लेकिन जो बाहर वाले खानदान से आए वो सिर्फ बीवी बन के अपने खानदान से नहीं हो सकती। और यही वजह थी जब आयत ततहीर नाज़िल हुई तो जिब्रील ने ऊपर से कहा था, या अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है?
اب جبریل سے زیادہ پہچان کسی کو نہیں، جبریل سے زیادہ پہچان کسی کو نہیں، وہ سب کا خادم ہے۔ جب بھی آیا یا محمد کے پاس آیا یا علی کے پاس آیا یا فاطمہ کے پاس آیا یا حسن کے پاس آیا یا حسین کے پاس آیا، اللہ سے پوچھنے لگا یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے فرمایا بھائی ہمیشہ تو ان کے پاس جاتا ہے، تجھے پتا کیوں نہیں چل رہا یہ کون ہے؟ کہا آج عظیم منظر ہے کہ مجھے پہچان نہیں ہو رہی کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اجازت لے کے آیا، چھٹا شامل ہوا، اتنا حال تھا کہ آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی ساری آیت نازل ہوئی۔ آیت نازل ہونا تھا کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس آ کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ چادر کے نیچے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں؟ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں؟ تو پیغمبر نے فرمایا انتے علی الخیر، انتے علی الخیر، یہ صحیح ہے کہ تو بھلائی پہ ہے، یہ صحیح ہے کہ تو اچھی ہے، لیکن پھر بھی تو اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ صحافتہ کی بیشتر کتابوں میں موجود ہے۔ صحافتہ کی، یہ صحافتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ستہ کا معنی 6، صحاح صحیح کی جمع ہے، صحافتہ یعنی 6 صحیح کتابیں۔ صحیح، پوری توجہ، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحیح قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی نہیں۔ صحافتہ 6 صحیح کتابیں، اور صحافتہ کی بیشتر کتابوں میں یہ لکھا، بیشتر یعنی 6 کتابوں میں 3 سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا بعدی 12 خلیفہ، کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ بھائی میں نے اپنی کتاب کا تو نام ہی نہیں لیا، اگر اپنی کتاب کا نام لوں تو پھر کہنا بھائی تم اپنی کتاب سے پڑھ رہے ہو۔ میں صحافتہ کی جسے تم کہتے ہو سب سے صحیح کتابیں ہیں، ان میں نے عرض کیا کہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ ہمارے ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اپنے ننھے بچوں کو بتاتی ہیں بیٹا یاد کرو پہلے کا نام ہے علی۔ پیغمبر نے کہا تھا اہل سنت پہ عمل کرنے والوں، حدیث پہ عمل کرنے والوں، میں نے حدیث بتائی ہے کہ صحافتہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے ننھے بچوں کو بتاتی ہیں بیٹا یاد کرو پہلے کا نام علی، دوسرے کا حسن، تیسرے کا حسین، چوتھے کا علی، پانچویں کا محمد، چھٹے کا جعفر، ساتویں کا کاظم، آٹھویں کا علی، نویں کا محمد، 10ویں کا حسن علی، 11ویں کا حسن اور 12ویں کا، سب نام بتاتی ہیں کہ ہمارے 12 امام یہ ہیں، ہمارے 12 امام یہ ہیں، ہمارے 12 امام یہ ہیں۔ وہ جو نبی نے بتائے تھے، وہ جو نبی نے بتائے تھے ہماری مائیں بہنیں ہم کو بتاتی ہیں بھائی یاد کرو یہ ہے وہ 12۔ اگر تمہارے بھی کوئی 12 ہیں تو تم بھی بتاؤ بھائی۔ اگر کوئی 12، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے 12 ہوں گے، تو اگر تمہارے پاس کوئی 12 ہیں تو بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سناؤ۔ صرف ہم نے مانا، ہم نے یاد کیا، ہم نے ان کی سیرت پہ عمل کیا۔ اگر تمہارے بھی کوئی ہیں تو بتاؤ، اور جو ان کے ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، شرح فقہ اکبر میں ان کے 12 امام لکھے ہوئے ہیں، جو ان کے 12 ہیں ان میں چھٹا لعین یزید بنتا ہے۔ کتنے امام وسیع ہوں گے میرے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا
12 खलीफा होंगे। मैंने किताबों का हवाला दिया, ऐसे बात नहीं की ज़िम्मेदारी के साथ। हमने 12 गिनवा दिए, पहले का लिया। और एक बात कर रहा हूं, जाओ तारीख पढ़ के देख लो, हमारे किसी इमाम पे भी नक्स साबित कर। हमारे सारे के सारे मासूम हैं, ये मैं अगली तकरीर में बताऊंगा, टाइम कम रह गया। 12 को हम ही मानते हैं, 12 को हम ही मानते हैं। तमाम मुसलमानों में जो नबी ने बताए थे 12, मैं भी नाम नहीं बता रहा, कल इंशाल्लाह नाम भी बताऊंगा पैगंबर की जबान से, लेकिन आज मैं इतना बता रहा हूं कि नबी ने बताए थे 12, हमने 12 माने। जो तुमने 12 माने हैं ना, वो बताओ भाई, जो माने हैं बताओ। अगर हमारे वाले हैं तो फिर हमसे इख्तिलाफ कैसा? और अगर हमारे वाले नहीं कोई और है तो फिर बताओ। और अगर नहीं माने तो फिर तो अहले हदीस कैसा? भाई जब हदीस है कि 12 है तो फिर बता कौन से है? खुदावंद आलम आपको सलामत रखे, आपकी परेशानी दूर फरमाए। इसे जिक्र के वास्ते उलमा ये पढ़ते हैं कि जब पता नहीं कब छठे इमाम से पूछा गया आप कब से हैं, इमाम ने फरमाया जब कब ना था। अब मुझे नहीं पता कब, जब भी अल्लाह ने पाक मुस्तफा का नूर खलक किया, तो पाक मुस्तफा के नूर के खलक होने के बाद पाक मुस्तफा ने एक लंबा सजदा किया। लंबा सजदा करने के बाद जब सजदे से सर उठाया तो पैगंबर के माथे पे पसीना आया। अल्लाह ने कहा यह मेरा महबूब है, मैं इसे चाहता हूं, मैं इसकी कोई चीज भी जाया नहीं होने दे सकता। अल्लाह ने मोहम्मद के पेशानी के पसीने के एक एक कतरे के सदके में एक एक नबी को खलक कर दिया। अरे जिसके पसीने के कतरों से तमाम नबी बने उसे मुस्तफा कहते हैं। एक एक नबी को खलक कर दिया। जो नबी का पसीना है वो अलैहिस्सलाम भी है। हाय हाय हाय। जो नबी का पसीने के कतरों से मले हैं वो अलैहिस्सलाम भी हैं, उनके तज़किरे पे एतराज भी कोई नहीं। हाय हाय हाय। और जो मोहम्मद के खून से बने हैं, ओए होए होए, पसीना अफजल होता है या खून? तो फिर क्यों जब वो अलैहिस्सलाम है तो ये क्यों नहीं? ये इसीलिए नहीं क्योंकि ये इनके 12 हैं जो नहीं। जिनके 12 हैं वो मानते हैं पैगंबर के पसीने अक़दस से बने नबी। और खून और पसीने का फर्क बता रहा हूं, चूंकि मैंने एक शहादत वो पढ़नी है, मैं उसकी तरफ जाना है। खून और पसीने का फर्क बता रहा हूं, खून और पसीने का फर्क बता रहा हूं। पैगंबर का पसीना थे यूसुफ, पैगंबर का पसीना थे यूसुफ, पैगंबर का पसीना थे यूसुफ। इधर पैगंबर का खून था मूसा काज़िम। खून और पसीने में फर्क बताना चाहता हूं। पैगंबर का पसीना था यूसुफ, इसीलिए यूसुफ ने, तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, यूसुफ ने पैगंबर का खून पसीना होने के नाते से अपने आप को जुलेखा से महफूज तो कर लिया, लेकिन जुलेखा से उसकी उस ख्वाहिश को मिटा ना सके। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो करेंगे समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। खून और पसीने में फर्क क्या है? पैगंबर का पसीना है यूसुफ, जुलेखा आती है गलत नजरिया लेके, और जुलेखा किसी घटिया खानदान की खातून भी नहीं, बड़ी आला खानदान की खातून है जो ऐसा काम कर ही नहीं सकती।
लेकिन इधर है पसीने मुस्तफा। ये पसीने मुस्तफा का असर था, तवज्जो, ये पसीने मुस्तफा का असर था कि यूसुफ ने जुलेखा से अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन जुलेखा के दिल से उसकी ख्वाहिश को निकाल न सके। इधर है खून मुस्तफा। और जिंदान में औरत भी कोई अच्छे खानदान की नहीं, फाहिशा लाई जाती है, लेकिन जैसे ही खून मुस्तफा को देखती है कदमों पे गिर जाती है। कदमों में गिर के कहती है, मौला मैं फाहिशा थी। सातवें इमाम को शहीद करने के बहाने इन लाइनों ने भेजा फाहिशा को, तू जा, हम इल्जाम लगा के कत्ल कर देंगे ताकि दुनिया के शियों को पता ना चले कि उनका इमाम कत्ल हुआ है, इसलिए भेजा। जैसे ही पहुंची, चेहरे अकदस पे नजर पड़ी, कदमों पे गिर गई। जो अपने आप को बचा ले और उसके दिल से ख्वाहिश खत्म न कर सके, उसे पसीने मुस्तफा कहते हैं। और जो आने वाली को पक्की मोमिना बना दे, उसे खून मुस्तफा कहते हैं। टाइम खत्म हो गया, बहुत सारी बातें जहन में आती हैं मौला करम नवाजी से, चूंकि टाइम आने वाले हैं, मुझे टाइम बताया उन्होंने, उससे पहले छोड़ना है। चंद जुमले मैं पैगंबर के 7वें बेटे के कहना चाहता हूं। वाक़या करबला के बाद जो दर्दनाक शहादतें हुई ना, उनमें एक दर्दनाक शहादत मूसा काज़िम की है। और अज़ादारों, दर्दनाक नहीं, मैंने उलमा से सुना है कि दो हस्तियां कयामत के दिन जंजीरों समेत उठेंगी। क्यों? अज़ादारों, तेरा मेरा 7वां इमाम कोई आम मजलूम नहीं, मौला मूसा काज़िम कोई आम मजलूम नहीं। अरे दुनिया में लोगों की कैद खत्म होती है, इस कायनात में लोगों की कैद खत्म होती है, लेकिन तेरा मेरा मौला इतना बड़ा मजलूम है जिसकी जिंदगी खत्म हो गई, कैद खत्म ना हो सके। और उलमा से सुना है मैंने कि कयामत का दिन दो हस्तियां जंजीरों जेवर समेत उठेंगी। अल्लाह दिल दुखे माफ करना, पहली हस्ती है हुसैन की 4 साल की सकीना, जो जंजीरों समेत उठ के कहेगी, बाबा हुसैन, नाना मोहम्मद, देख तेरी उम्मत ने कैसा अजर रिसालत दिया। और दूसरी हस्ती है मूसा काज़िम, जंजीरों समेत उठ के कहेंगे, नाना हमारा कसूर क्या था। हम मुसलमानों गौर तो करके देखो, रोना शहादत पे नहीं आता, रोना उस जुल्म पे आता जो मजलूमों पे किया गया। मेरा 7वां इमाम, लोग ये पढ़ते हैं, उलमा ये पढ़ते हैं कि 14 साल की कैद। ईमान से तारीख पढ़ के देखो, 14 साल की कैद वो है जो बेगैरत हारून रशीद ने दी थी। अगर मजमूअन देखा जाए तो मौला 12 मरतबा कैद हुए, और मुकम्मल तौर पे मेरे 7वें इमाम की कैद बनती है 32 साल। अरे जिसकी 32 साल जिंदान में होगा, उम्र कट गई हो, वो कितना बड़ा मजलूम होगा। अदादारों, नेकी का हुक्म देते थे मौला, यही जुर्म था ना, हक का बताते थे, यही जुर्म होता था। इस बेगैरत हारून रशीद ने कहा, कैद करके लाओ उसे। रिवायात में लिखा है कि मेरे मौला नाना मोहम्मद की जरी के पास नमाज पढ़ रहे थे कि फौजी दाखिल हुए। अल्लाह, ये कैसे मुसलमान थे, नबी के रोजे का भी ख्याल नहीं किया करते थे। दाखिल हुए बेगैरतों ने मूसा काज़िम के नमाज खत्म करने का इंतजार नहीं किया। जब मौला रुकू में गए, इन्होंने बेड़ियां पहनाई,
जब मौला क़याम में आए इन्होंने हथकड़ियां पहनाई, जब मौला सजदे में गए इन्होंने गले में तोक पहनाया। अदादारों, मौला ने नमाज खत्म की। नमाज खत्म करने के बाद मेरे मौला ने नाने की रोजे की जाली को पकड़ लिया और रो के कहा, नाना मैं जाना नहीं चाहता लेकिन तेरी उम्मत जबरदस्ती ले जाना चाहती। अजोकमल्ला शिबा में हुसैन को हमने देखो, मौला आपको सलामत रखे, बड़े आराम के साथ। रिवायत में लिखा है ये लाइन खींच के ले गए मेरे मौला को। ये बाहर लाइन हारून रशीद खुद खड़ा था। इन्होंने उस वक्त के शियों को धोखा देने के लिए 2 महमल तैयार किए। एक यमन की तरफ भेजा, एक बसरा की तरफ भेजा, सिर्फ इसलिए कि किसी को पता ना चले कि मौला किस तरफ गए हैं। लेकिन मौला उस महमल में थे जो बसरा की तरफ गया था। इसने महमल भेजने के साथ एक खत लिखा। बसरे का गवर्नर था ईसा बसरी उसका नाम था। इसने उसके नाम खत लिखा। देखो आल से बुग़्ज़ देखो, बनु अब्बास का खलीफा है, मुसलमान है, मोहम्मद का कलमा गो है, लेकिन उसी मोहम्मद के बेटे के लिए अपने गवर्नर को लिख रहा है, गवर्नर इस कैदी को पानी ना देना, इसको खाना ना देना और इसको सख्त से सख्त कैद खाने में बंद करना। अदादारों, ये पहुंचा महमल वहां पे। जैसे पहुंचा 3 दिन बाद ईद थी। जुमला सुनना, मेरी मां बहन समझेगी इस बात को जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। सादात से माफी मांगकर दिल दुखे माफ करना। 3 दिन बाद ईद थी। ईसा बसरी के नाम उसने लिखा था कि तूने इसको अलहदा कैद खाने में कैद करना है जो सबसे ज्यादा सख्त हो। ईद करीब थी। इसने सोचा ईद करीब है, मैं बाद में कैद खाना बना दूंगा, मेरी औलाद घर में है, अगर कैद खाना बनवाने चला गया वो ईद कैसे करेंगे। अदादारों, इसने अपने घर के कमरे में मौला को कैद कर दिया। जब ईद का दिन आया, इसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां जब नए कपड़े पहन के इसके शहर में आए ना, उस कमरे की एक खिड़की शहर में खुलती थी। मौला ने देखा ईसा की 2 बेटियां तैयार होकर फिर रही है। मौला को अपनी 18 याद आ गई। रो के कहता, बेटियों तुम्हारी किस्मत। इतने दर्द बने बहन किए कि ये रोती हुई गई बाप के पास, जाके कहती है, बाबा या हमारे कपड़े बदल या इस कैदी का कैद खाना बदल। कहा क्यों? कहा इसके दर्द बड़े बहन, हमें ईद नहीं करने देते। ये आके कहता, काजम तूने क्या कहा है मेरी बेटियों को, ये रोती ही रोती है। इमाम रो के कहता, ईसा जब तेरे हाकिम ने तुझे हुक्म दिया था कि अलहदा कैद खाना बनवाना, तो फिर बनवाया क्यों नहीं? ये कहते इसलिए मैंने सोचा ईद करीब है, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियों की ईद बाप के बगैर नहीं होती। इमाम मुंह पीट के कहते हैं, ईसा तेरी 2 बेटियां और मेरी वतन पे 18 बेटियां। अजरक में अल्लाह शिवाय में हुसैन के हुक्म ना देखो। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी परेशानियां दूर करे। खत्म कर रहा हूं बस। मेरी वतन पे 18 बेटियां, 1 साल कैद रखा इसने मौला मूसा काजिम को। 1 साल कैद करने के बाद इसने खत लिखा, हारून मुझ में सकत नहीं है इस कैदी के रखने की। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए जिसको भी इसका निगहबान बनाता हूं वो इसका शैदाई हो जाता। ये पता नहीं जिंदान में करता क्या है कि जिसे भी इसका दरोगा बनाता हूं, जिसे भी इसका निगहबान बनाता हूं, वो इसका शैदाई हो जाता है। हारून ने लिखा, हारून को लिखा ईसा ने। ईसा ने लिखा, हारून तू यकीन कर, मेरा सबसे बड़ा जालिम, बड़ा जरी जालिम गुलाम हबशी था।
سب سے بڑا ظالم تھا، میں نے اسے اس کی نگہبانی پہ رکھا۔ ایک ہفتے بعد اس نے آ کے مجھے جواب دے دیا، اس نے کہا مجھے اس کے پاس ہی رہا جاتا، اور کہا کیوں؟ وجہ تو بتا۔ وہ غلام کہتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے میں برداشت کرتا ہوں، یہ نماز پڑھتا ہے، جملہ سننا دل اٹھے معاف کرنا، یہ نماز پڑھتا ہے میں برداشت کرتا ہوں، یہ رکوع لمبا کرتا ہے میں برداشت کرتا ہوں، یہ سجدہ لمبا کرتا ہے میں برداشت کرتا ہوں، لیکن عیسیٰ جب نماز تہجد کے بعد جو یہ کام کرتا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بتا تو صحیح نماز تہجد کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ غلام ظالم ہونے کے باوجود رو کے کہتا ہے جب نماز تہجد پڑھ لیتا ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، شام کی طرف منہ کر کے کہتا ہے آیا میری دادی زینب۔ ادرک من اللہ، سوائے کہ میں حسین کے حکم نہ دیکھو، اس نے بھی منع کر دیا، واپس بھیج دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جملہ کہو، جس طرح علی کی بیٹیوں کو مختلف بازاروں میں پھرایا گیا نا، اس طرح تیرے میرے مولا موسیٰ کاظم کو مختلف زندانوں میں پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ میں حسین کو دیکھو، جس زندان میں جاتے تھے کوئی علیحدہ کام کرتے تھے، وہاں کے لوگ مولا کے شدائی ہو جاتے، دروگا جو ہوتے تھے وہ مولا کے شدائی ہو جاتے۔ اللہ دارو آ گیا سندھی بن شہد کا قید خانہ، خدا اس پہ لعنت کرے، خدا اس پہ لعنت کرے، خدا اس پہ لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بغیرت نے کہا ہارون مجھے پتا ہے اسے کیسے رکھنا ہے۔ ہارون نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں، یہ کبھی رکوع زیادہ کرتا ہے، کبھی سجدہ زیادہ کرتا ہے، کبھی قیام زیادہ کرتا ہے، کوئی ایسا کام کر نہ یہ قیام کر سکے، نہ یہ سجدہ کر سکے، اور نہ یہ لمبا رکوع کر سکے۔ عزادارو آج بھی وہ قید خانہ بغداد میں موجود ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، آج بھی کھڑا ہو کر وہاں نہیں جایا جاتا۔ مولا رکوع کی حالت میں وہاں رہے، اور صرف قید خانہ نہیں تھا، روایات میں لکھا ہے، علامہ زبی محلاتی لکھتے ہیں کہ اس نے ایک لوہے کا کڑا بنوایا جس میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا انسان، اس کے اوپر بھی سلاخیں، ادھر بھی سلاخیں، بائیں بھی سلاخیں، نیچے بھی سلاخیں، کئی سال تک میرا مولا اس کڑے میں قید رہا۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ میں حسین کو ہم نے دیکھو، عزادارو آ گیا 23 رجب کا دن، اس بغیرت نے انگوروں میں ملا کر میرے مولا کو زہر دی۔ زہر کا اندر جانا تھا کہ جگر پھٹا، جگر کا پھٹنا تھا کہ مولا نیچے گرے، نیچے گرنا تھا کہ نیچے کی سلاخیں میرے مولا کے سینے میں پیوست ہوئی، لیکن اس کے باوجود میرے مولا کی روح قبض نہیں ہو رہی، دنیا سے شہادت نہیں ہو رہی۔ اس نے علامہ زبی محلاتی لکھتے ہیں اس بغیرت نے اپنے خاندان کے ظالم افراد کو بلایا اور بلا کے کہا زہر بھی دیا ہے لیکن پھر بھی نہیں مر رہا، یہ بغیرت آئے، انہوں نے مولا کو کڑے سے نکالا، کڑے سے نکال کر فرش پہ لپیٹا، فرش پہ لپیٹ کر ایسا ظلم کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ میں حسین کو ہم نے دیکھو، آخری جملہ کہنا ہے عزادارو، تاریخ کا آدم سے لے کر قیامت تک کا یہ پہلا جنازہ ہے کہ 19 بیٹے ہوں اور جنازہ اٹھانے والے مزدور۔ اس بغیرت نے کہا مزدور بلاؤ اور اس کا جنازہ اٹھا کے پورے بغداد پہ پھینکو۔ رکھا نہیں کہا، جو عربی کا لفظ ہے، سادات سے معافی مانگ کر جو عربی کا لفظ ہے اسے بنتا پھینکو۔ 4 مزدور محمد کا بیٹا، ارے یہ اجر دے رہے ہو آل محمد کو، اور آج کہتے ہو روتے کیوں ہو؟ محمد کے بیٹے کا جنازہ یہ پورے بغداد پر رکھ کے لوٹ آئے، ان کا واپس آنا تھا۔ یا ایک کالے برقعے والی خاتون جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ بغداد کا رہنے والا بشیر لوہار ہے، اس کے در پہ دستک ہوئی، بشیر لوہار باہر نکلا، کہا کون؟ کہا میں تیرے محمد کی بیٹی ہوں۔
अदरक में अल्लाह। कहा बशीर तूने एक मन्नत मांगी थी। कहा बीबी क्या? कहा तूने मन्नत मानी थी कि मौला मुझे बेटा दे, मैं फातिमा के बेटे की खिदमत करूंगा, मैं फातिमा के बेटे की खिदमत करूंगा। कहा हाँ बीबी मैंने मन्नत मांगी थी। तो कहा फिर खिदमत की क्यों नहीं? कहा मुझे फातिमा का बेटा मिला ही नहीं, इतना कहना था। बीबी रो के कहती है आ मेरा बेटा पूरे बगदाद में आया है। इसने कहा जरा ठहर जाओ, नरम बिस्तर उठाऊं, गर्म पानी उठाऊं, आपका बेटा होगा, नाजों का भला होगा, इतना कहना था। बीबी ने मुंह बीट के कहा ना नरम बिस्तर की जरूरत है ना गर्म पानी की जरूरत है। और बशीर अपने हथियार उठा, मेरे बेटे का